शुरू हो गई। अच्छा, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी। Today we have explained the concept of the continuity of chapter 5 class 12th। चैप्टर 5 है ये। चैप्टर का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। लेकिन द चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू द बेसिकली इन टू पार्ट्स। one is the continuity and another is the differentiability. So we have to explain one by one. So first of all we have to study about the concepts of the continuity, concept of continuity, and what is continuity. We have tried to explain what is continuity. Generally we say that in a graph, if there is a no jump or the gap in a curve, then we can say a function is the continuous. And at certain points we have checked the continuity. So we have write y is equal to fx. Okay, if we draw the, suppose the curve drawn by the y is equal to fx is like that. So we have seen that there is a no jump in this curve. So we can say that function is the continuous. So we have tried to explain that continuity with the help of a example. Suppose fx is equal to a function is given that 1 and 2. X is less than and equal to 0 and x is greater than 0. First of all we have to draw the graph of this function. There is a two functions. Whenever x is less than or equal to 0, then our function will be equal to 1, and whenever x is greater than 0, then our function will be equal to 2. So that there is a break in this function at the x is less than equal to 0 and x is greater than 0. So we have tried to check the continuity at 2 points, whenever x is less than equal to 0 or x is greater than 0. It means whenever we define the continuity or check the continuity or examine the continuity, then first of all we have seen that whenever the definition of the function is break up. So first of all we have draw a graph of this function. Suppose that is a Cartesian plane. X-axis और y-axis, x bar and y bar. ठीक है। अब x is less than and equal to 0. What will be the graph is this one? 1. x is less than and equal to 0. इसका ग्राफ क्या होगा कि ये इसका ग्राफ होगा, लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी क्योंकि y इज इक्वल टू 1 है। तो अब दूसरा क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन 0। अब x इज ग्रेटर देन 0 बट नॉट इक्वल टू 0। x इज, मेरी बात बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0। तो suppose we have draw this, that is called a node, and in x is greater than 0, it means this function is like that. Here is 2 and that will be this form. Okay, अब हम क्या देखें कि x की वैल्यू अगर 0 के बराबर या फिर 0 से छोटी डालते हैं तो क्या होगा कि ये फंक्शन इस साइड से इस साइड आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये फंक्शन वैसे तो क्या है, x अप्रोचेज टू 0, और इस साइड से क्या होगा ये कि x अप्रोचेज टू 0। इस साइड से भी ऐसे ही इस साइड आ रहा है, दोनों फंक्शन मतलब 0 के पास में आ रहा है क्योंकि यहाँ पर 0 दे रखा है। ठीक है, तो ये ग्राफ किसका हो गया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, और ये किसके लिए हो गया कि x इज ग्रेटर देन 0 के लिए हो गया। ठीक है, अब हम क्या देखें कि क्या दोनों पर, अब जब मैंने इन दोनों का कर्व ड्रॉ किया तो इन दोनों का ग्राफ ड्रॉ हो गया। ग्राफ ड्रॉ होने पर क्या आप लोग इसका कर्व बिना हाथ उठाए
ये कर्व बना सकते हैं आप, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि ये फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पर कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। अब यहाँ से एक बात समझ में आई कि ये तो हुआ LHS हमारा, मतलब LHS का क्या मतलब है, 0 से छोटी वैल्यू लेस देन 0, यानी x इज टेन टू 0 नेगेटिव, वो हम कहाँ लिखेंगे, x इज टेन टू 0 नेगेटिव। और यहाँ से क्या होगा कि x इज टेन टू 0 पॉजिटिव। अब x टेन टू 0 नेगेटिव मतलब ये बन गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, LHL कहते हैं, और इस साइड वाले को हम क्या कहेंगे, RHL कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से अब फंक्शन कंटिन्यूअस कब हो सकता है, इसका मतलब कि जब हम कर्व ड्रॉ करें और वो कर्व में कोई जंप नहीं हो। वो कब पॉसिबल होगा, व्हेनेवर कि LHL इज इक्वल टू RHL। कुछ ऐसा थोड़ा सा हमने कहाँ पर पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्लास 11th में भी, क्योंकि वहाँ पर लिमिट और डेरिवेटिव था। तो लिमिट में भी LHL और RHL निकालते थे हम। तो जब LHL RHL के अगर बराबर हो जाए तो ये क्या होगा कि हम कह सकते हैं कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। तो लेकिन ये एक हमारी नेसेसरी कंडीशन है। अगर LHL RHL के इक्वल आ गया देन वी कैन से फंक्शन इज कंटिन्यूअस। इसको हम लिख किस तरीके से सकते हैं कि लिमिट LHL लिखा हमने, और LHL को हम किस तरीके से लिखेंगे, लिमिट x टेन टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू RHL लिखा हमने, और लिमिट x टेन टू 0 पॉजिटिव fx। बट इट इज नेसेसरी कंडीशन। ये किस तरीके कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन सफिशिएंट कंडीशन हमें चाहिए। क्या होगा, इट इज नॉट सफिशिएंट, बट इट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन। तो अब हम क्या देखें कि सफिशिएंट कंडीशन कैसे होगी भाई। तो हमने क्या किया कि एक सपोज करो कि एक और फंक्शन ले लिया हमने। वो फंक्शन किस फॉर्म में लिखा हुआ है कि हमने लिखा उस फंक्शन को कि चलो एक एग्जांपल ले लिया, fx इज इक्वल टू, ये हमारा आया 1 और ये हमारा आया 2, और x इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब इसमें हम आपको दिखाएंगे फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी भी पॉइंट पर, यानी उस पॉइंट पर भी फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो फिर कुछ ऐसा ही ग्राफ आएगा, एकदम इसके जैसे नहीं होगा, लेकिन क्या मैथमेटिकल चेंज होगा, यू हैव टू सी हियर। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स बार और वाई बार। कह रहा एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x 0 के बराबर नहीं होगा। यहाँ x 0 के बराबर हो रहा था, यहाँ पर x 0 के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर मैंने एक नोड लगा दिया, मतलब x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा इस साइड से आया इस तरीके से। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, LHL। ठीक है, और दूसरा हम क्या देखते हैं, इसने कहा x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 2 के बराबर होगी। तो वो हमने 2 यहाँ मान लिया। सॉरी, ये लाइन नहीं आएगी, यहाँ पे सिर्फ 2 है। तो मतलब x इज इक्वल टू जब हम 0 पुट करते हैं तो y इज इक्वल टू 2 आता है, तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये लाइन नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हमें ऐसा ग्राफ भी बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसी कर्व बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकता हूँ? नहीं, अब एब्सोल्युटली हमें दिखाई दे रहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो इससे अब हमारे समझ में क्या आया है, यहाँ हमने लिखा कि यानी फंक्शन उस पॉइंट पर भी कंटिन्यूअस होना चाहिए जिस पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, जिस पर हम कंटिन्यूअस उसको शो करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लिमिट x टेन टू 0 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट
एक्स टेन टू 0 प्लस और एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ क्या लिख लूँ, कोई बुक सी लिखती है, कोई ए लिखती है उस पॉइंट को, चलो मैंने उसको सी लिख दिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, LHL उसकी, RHL और उस पॉइंट पर। तो तीनों पॉइंट पर अगर कोई फंक्शन की वैल्यू सेम आती है तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब तो इसकी ओवरऑल अब हमारी डेफिनेशन क्या बन सकती है। अ फंक्शन, यहाँ हमने लिखा अ फंक्शन हैज डोमेन in subset of real numbers, in subset of real numbers, but and लिख लेते हैं, and there is a point, and there is a point, there is a point C in its domain, C in its domain, in its domain, then function is continuous, then function is continuous at C, at C। और पूरा हम क्या लिख लेंगे, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि लिमिट एक्स टेन टू सी माइनस, सी पर मैं चेक कर रहा हूँ ना इस फंक्शन को, तो ये LHL हो गई, इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेन टू सी पॉजिटिव एफ एक्स और इज इक्वल टू एफ सी। मतलब तीनों की वैल्यू हमारी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, देन वी कैन से द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे 0 पे थी तो मैं इस सी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, यहाँ पर सी है, ए भी बुकों में लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से कि 50% ऑफ द कंटिन्यूटी क्या कंसेप्ट है ये आपको समझ में आ गया होगा। लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से और थोड़ा क्लियर होगा। हमने लिखा कि ये हमारी बुक का एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ही हमने लिख लिया कि क्वेश्चन नंबर साइज 6 है ये। यहाँ लिखा हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू, और फंक्शन है हमें क्या दे रखा है, 2x प्लस का 3 और 2x माइनस 3। ठीक है, और ये आ गया हमारा x इज लेस देन एंड इक्वल टू 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब जब भी हमने क्वेश्चन लिख लिया, सबसे पहली बात जब हम कंटिन्यूटीज की एग्जामिन करेंगे या कंटिन्यूटी की किसी पॉइंट पर चेक करेंगे तो फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये क्वेश्चन है, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि हम इस क्वेश्चन में देखें कि जो हमारा डेफिनेशन है कंटिन्यूटी की वो ब्रेकअप कहाँ हो रही है। तो x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इस पे तो ये इसका मतलब एक तो x की वैल्यू 2 से छोटी के लिए हमारे पास ये फंक्शन दे रखा है, और जब x 2 से बड़ा है तो उस केस पे हमारे पास ये फंक्शन अवेलेबल है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पर व्हेनेवर x इज लेस देन और इक्वल टू 2 और x इज ग्रेटर देन 2, तो हमारे पास अब दो पार्ट बन गए इस क्वेश्चन के। उन दोनों पार्ट्स पर हम क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू चेक कर देंगे। तो कैसे चेक करेंगे इसको हम देखते हैं, यानी हमारा फंक्शन ये कंटिन्यूअस किस कंडीशन पर होगा वो बात हम देख लेते हैं इसमें। कि यहाँ मैंने लिखा कि लिमिट x टेन टू 2 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेन टू 2 प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू f2। ठीक है, अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो ये फंक्शन 2 पर क्या होगा,
कंटिन्यूअस हो जाएगा और डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, हम इसको देख लेते हैं, किस पर चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 2 पर चेक कर लेते हैं ताकि मेरी fa की वैल्यू निकल आए। तो f2 की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो x इज इक्वल टू 2 यहाँ पर दे रखा है, इस फंक्शन के साथ में दे रखा है। तो इसमें सिंपल है, कुछ बात प्रॉब्लम नहीं कि 2 इंटू 2 इज प्लस का 3, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 7 के इक्वल आ गई। ठीक है, या मैं वैसे भी लिख सकता था इसको कि लिमिट x टेंड टू 2 और fx, इस तरीके से भी लिख सकता था कि लिमिट x टेंड टू 2 और क्या लिखा 2x प्लस का 3 दिस इज इक्वल टू x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, ये 7 आ गया। फिर हमने लिखा यहाँ पर कि लिमिट x टेंड टू LHL जिसको कहते हैं LHL, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस fx। अब बहुत अच्छे से देखो कि मैं इसको क्या लिखता हूँ कि लिमिट h टेंड टू 0, मतलब x को मैंने 0 में कन्वर्ट कर दिया, हर क्वेश्चन में मुझे ऐसे ही कन्वर्ट करना है। और यहाँ पे क्या लिख दूंगा फंक्शन और 2 माइनस एच, ठीक है, x की वैल्यू 2 से कम के लिए मेरा फंक्शन ये होगा। तो ये मेरा क्या आ गया, लिमिट h टेंड टू 0 और यहाँ मैंने लिखा 2 और क्या लिख दिया x की जगह पर 2 माइनस एच और प्लस का 3। तो अब हम देखें कि h की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया तो 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7 हो गया। अब नेक्स्ट वाले में देखता हूँ मैं, यहाँ मैंने लिखा कि लिमिट RHL, ठीक है, तो लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, मतलब 2 से बड़ी वैल्यू fx इज इक्वल टू लिमिट h टेंड टू 2 x टेंड टू 0 और फंक्शन ऑफ, और यहाँ लिख दिया 2 प्लस h। अब देखो 2 प्लस एच मतलब x की वैल्यू 2 से ज़्यादा, तो 2 से ज़्यादा के लिए हमारी वैल्यू क्या हो गई, कौन सा फंक्शन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पे लिखूँगा कि लिमिट h टेंड टू 0 और 2 आ गया और x की जगह पे 2 प्लस h हुआ माइनस का 3, h की जगह पे 0 डाला, 2 2 जा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1 के इक्वल हुआ, 1 ही तो आएगा। तो अब हम क्या देखें कि LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है, और वो FA तो अलग है, तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। तो मेरे हिसाब से ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। तो ये एक कंसेप्ट था किसका, कि कंटिन्यूटी हम किस तरीके से फंक्शन की चेक किया करते हैं। ओके, मेरे ख्याल में एक तो ये बात है। हाँ, 18 मिनट की हो गई, बोल दो कमेंट सब्सक्राइब लाइक कीजिए। अच्छा, भाई वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करेंगे और कमेंट करेंगे, ठीक है। ओके, टेक